Yesterday's topic was learning curve, and today we are about to finish the this topic of forecasting. We have done in detail everything yesterday. So benefits of using learning curve in forecasting. Like with learning, you develop your expertise and you consume less time. That helps you in labor budgets. Okay, so when experience grows and time is saved, so that helps you to even become more efficient and less wastage. Okay, so that is helpful for a company. So learning curve should be used in development of production and labor budgets when changes such as new products are planned. Recognizing the higher cost will occur in early phase of the product cycle, of course, understood fact. Allows more effective evaluation of managers, like how managers are studying each and everything with the passage of time, and कैसे वो लोग हर चीज़ को समझ के उसको सीख के उसको लर्न कर रहे हैं और हर चीज़ को समझ रहे हैं एंड उसको फिर रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. लेबर कॉस्ट should be adjusted regularly in recognition of fact that learning causes standard cost to decrease over time. Life cycle costing and bidding. In calculating the cost of a contract, learning curve analysis can ensure that cost estimates are accurate over the life of the contract, leading to better, more competitive bidding on projects. मतलब अगर लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कहाँ से शुरू होता है, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट. ओके, इंट्रोडक्शन स्टेज, फिर ग्रोथ, फिर वो सैचुरेशन पे आता है, Maturity पीक पे decline. आता है, फिर वो गिर जाता है. तो पूरे के पूरे लाइफ साइकिल में what you are going to see, if you take some contract and during the life cycle of that contract you learn everything about that contract, and it helps you to estimate properly the cost in the upcoming future projects. Okay, सीवीपी एनालिसिस कर सकते हो आप, ब्रेक इवन कौन से पॉइंट पे आपको आ रहा है, एंड ओवर स्टेटमेंट अंडर स्टेटमेंट से बच सकते हो. कैपिटल बजटिंग में हेल्पफुल है, क्योंकि बजटिंग, कैपिटल बजटिंग भी होता है ना, कैपिटल कितना चाहिए, क्या चाहिए, किस तरीके का आपका जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं और किस टाइप का, किस इंटेंसिव यानी लेबर इंटेंसिव आप वर्क कर रहे हो या मशीन इंटेंसिव वर्क कर रहे हो, उसके हिसाब से लेबर कर रहे हो, तो लर्निंग कर्व एनालिसिस इंपॉर्टेंट है. मेक और बाय डिसीजन में भी काम आता है. थियरी क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दे विल ट्विस्ट यू लाइक एनीथिंग इन थियरी, एंड कल के दिन ऐसा ना रहे कि भाई हमने सब पढ़ा लेकिन हमको ये आंसर करना नहीं आया. ओके, क्राइटेरिया यू ऑलरेडी नो 72. Okay, sir. लर्निंग कर्व के कुछ 72% थियरी होता है सर. नहीं, 72 आउट ऑफ परसेंट आपको आना है किसी भी हाल में. ओके ओके. आउट ऑफ 540 360 आना है आपको. हम्म. तो लिमिटेशंस भी हैं, लाइक ये सब अप्रोक्सीमेशन है. देखो, अप्रोक्सीमेशन से एग्जैक्ट चीजें यहाँ पर कुछ भी नहीं है. ओके, and like learning curve analysis is appropriate only for labor intensive operations. other operations जैसे कंप्यूटर वगैरह का यूज आता है, रोबोटिक्स का आता है, तो कोई काम का नहीं है. वहां पर आप एफिशिएंसी ही एफिशिएंसी होती है, इनएफिशिएंसी देखने को कम ही मिलता है. ओके, और उनमें दिमाग नहीं होता है. आप जितना मेमोरी डालोगे, जितने का चिप डालोगे, वैसा काम करेंगे. एंड लर्निंग रेट इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट, तो ये भी एक ड्रॉबैक है. जैसे इफ इन रियल लाइफ द डिक्लाइन इन लेबर टाइम might not be constant. For example, मतलब लेबर एक इंसान है, हमेशा आपको 100% देना बोले तो नहीं चलता. हमेशा लर्निंग के साथ भी उसका वो धीरे धीरे वक्त के साथ उसका एज भी बढ़ता है, तो थोड़े मिसमैचेस भी होते रहते हैं. फाइन. And the reliability of a learning curve calculation can be jeopardized because एक jeopardy है, मतलब एक बहुत ही daunting task है, because an observed change in productivity might actually be associated with factors other than learning. बहुत सारे दूसरे factors भी important है, सिर्फ learning को आप इतना importance दे के मत रखो. such as change in labor mix, जैसे labor भी आप मतलब experienced inexperienced का combination आ जाता है, तो वहाँ पर भी आपका थोड़ा सा learning का concept match नहीं होता है. ठीक है, so let's go for the probability concept in forecasting. Okay, probability का एक बड़ा रोल है forecasting में, because you set up some estimates based upon the probabilistic approach. यानी आप suppose आपको कुछ पैसा आना है, तो आप उसमें एक probability factor देखते हो कि 70% मुझे पैसा आएगा, तो वहाँ probability आपको आया कि नहीं आया, in picture. Yes. Okay, प्रोबेबिलिटी के बारे में आई थिंक आप लोग को पता ही है, बट यहाँ पर वो प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए हमको. एक डाइस को रोल करना या कॉइन को टॉस करना, वो सब जरूरत नहीं है. यहाँ हम अलग टाइप के प्रोबेबिलिटी को देखेंगे. प्रोबेबिलिटी के थोड़े बहुत बेसिक्स आपको समझना है.
कि सम ऑफ द probabilities इज ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड probability इज ऑल अबाउट सक्सेस एंड फेलियर। ठीक है, अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हो, इफ इट इज हेड इट इज अ सक्सेस एंड इफ इट्स टेल इट्स अ फेलियर। तो प्रोबेबिलिटी को हम 0-1 बोल के समझना है। 0 मतलब फेलियर, 1 मतलब सक्सेस। गॉट इट? हाँ सर। मतलब यहाँ के टर्मिनोलॉजी। सो रीड दिस क्वेश्चन, इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड इन फोरकास्टिंग। ठीक है, तो देखो, the management of digital age, a computer store needs to know how many computers are sold each day in order to forecast sales for the coming year. And the budget analyst groups together the number of computers sold each day to show how many days in a year the store made no sales at all. मतलब क्या है? मैनेजमेंट डिजिटल एज एक कंप्यूटर स्टोर है, उसको ये देखना है कितने कंप्यूटर्स हर दिन बिक रहे हैं, ताकि वो इन ऑर्डर टू फोरकास्ट सेल्स फॉर द कमिंग ईयर, है ना, हर दिन के हिसाब से कितना बेच रहा है ऑन एन एवरेज, उससे उसको पता चलेगा ना भाई ईयर एंड में कितना उसके पास सेल्स हो जाएगा। फोरकास्टिंग इज डन फॉर द फ्यूचर एज ऑन टुडे। सो बजट एनालिस्ट ग्रुप्स, यानी जो बजट बनाते हैं, टुगेदर द नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड ईच डे टू शो हाउ मेनी डेज इन अ ईयर द स्टोर मेड नो सेल्स एट ऑल। मतलब कितना दिन सेल्स नहीं हुआ वो भी मालूम चलता है। How many days it made one sale and so on. The maximum number of computers digital age has sold in any one day is 10. Maximum 10 बेचा है, उससे नीचे कभी नहीं बेचा है। Store is open 6 days per week और 312 days per year. 6 days मतलब एक वीक में अगर 6 days अगर वो काम करते हैं तो 356 का हिसाब मत रखो, मतलब 65 का हिसाब मत रखो। 6 days इन ए वीक के हिसाब से 312 days per year. ओके, budget analyst sets up a table with historical data for 1 year. The following table is called frequency distribution. I think ये बहुत बच्चे लोगों का concept है, you can understand. Number of sales and number of days, मतलब कुछ भी नए बेचने के 17 दिन। एंड कितना बोला उसने, मैक्सिमम कितने बेचता है? 10 बेच सकता है मैक्सिमम, ही कैन सेल 10 इन ए डे, उससे ज़्यादा नहीं। तो एक भी कंप्यूटर नहीं बेचे सो दिन है 17, एक कंप्यूटर बेचे सो दिन है 23, ऐसा करके 10 कंप्यूटर बेचने के दिन है 10। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। अब हम क्या करेंगे, वो जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिवाइड करके प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लिया हम लोगों ने, एंड सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। So next analyst creates the following probability distribution based on the above frequency distribution, and आप देख सकते हो, based on the above probability distribution the probability that digital age will sell no computers in a given day is 6%, बिल्कुल नहीं बेचने का 6%, 10 computers बेचने का 3%। ठीक है, and the probability that will sell 10 computers, and the probability can be summed to calculate the probability of a range of sales. For example, the probability that the store will sell 4, 5 or 6 computers in a day, add कर दो उनके probabilities, 41%. That's it. Okay. Just see the problem, I will move forward. Okay, fine. Based upon that आप ग्राफ क्रिएट कर सकते हो ना, लाइक probability distribution number of sales per day। सबसे ज्यादा आपका देखो 5, यहाँ 15% है, तो 5 मतलब नंबर ऑफ सेल्स, यानी 5 कंप्यूटर बेचने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाईएस्ट है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलिंग 5 कंप्यूटर्स इज द हाईएस्ट, एंड अदर्स आल्सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट विद द लाइक डेटा गिवन हियर, आप कर सकते हो। इट्स अ इजी थिंग, यानी आपका 0.3% से शुरू होता है और 15% मैक्सिमम है। ठीक है, सो लाइक 0 मतलब अगर आपने मतलब बिल्कुल भी कोई नहीं बेचा है, 0 का प्रोबेबिलिटी कैसा है, यू कैन चेक 6%। तो उसको लेके आप 10 लाइक कंप्यूटर्स बेचने का प्रोबेबिलिटी का पूरा डेटा आपके सामने, यू कैन फ्रेम ए ग्राफ।
Fine, till here everything is all right. Let's move forward. Expected value. Expected value क्या होता है? What you are expecting? That's what I said you right now. अगर मुझे 1 लाख आने का है तो उसमें भी मैं probability यूज कर सकता हूँ. मतलब 1 लाख मुझे आने का है, मतलब आई एम नॉट श्योर 100% कि 1 लाख आएगा. आई मेड ए क्रेडिट सेल्स. So 10% मेरा bad debt है, 90% I can receive. So can I say 90,000 is my expected value? Hello? Can I say or not? Yes, I can say. Yes, sir. Now let's Yes, go sir. for this question. Go for this question and understand very properly क्या मैं बोल रहा हूँ अभी, ठीक है? So here are some things you have to understand. Expected value is the mean value, also known as the average value. Symbol of mean is mu. That is a statistical Greek letter. Okay. Now continuing with the digital age example, management calculates the expected value of sales to determine the number of computers the store can expect to sell on an average day. एक दिन में कितना बेच सकते हैं on an average? ठीक है? हाँ sir. Each possible number of computers that would be sold in a day is multiplied, मतलब जो भी है उसका मल्टीप्लाई करो probability से, number of sales into probability, you'll get expected value और weighted average mean is 4 point. यानी आप एक दिन में 4.858 computers बेच सकते हो, ठीक है? Expect to sell this much per day. Just go for the question. We'll go for the next one. Okay, sir. Yeah, just a second. Yeah, just a second. Yeah. So till here it is all right, and an expected value is a long run average value for a random variable. As a result, an expected value is more reliable as a long run average forecast. Okay, this is like fine. एक्सपेक्टेड वैल्यू से हम ये मालूम कर सकते हैं कि कितना सेल्स हमारा होगा, ये एस्टिमेशन तो करके रख सकते हैं ना. चलो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में कुछ समझो. पहले वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन का यूसेज क्या है समझो, फिर उसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? Okay, sir.
Just a second. Now अभी देखते हैं what is this and see ये वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ये है क्या एक्चुअली? कोई आइडिया वेरिएंस के बारे में, स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में? बीकॉम में स्टैटिस्टिक्स में कॉन्सेप्ट था ना? हाँ तो फिर क्या इसका क्या आइडिया है? बीकॉम तो हो गया। सो डू यू रिमेम्बर समथिंग रिगार्डिंग दिस और पूरा भूल गए अभी? सिग्मा वगैरह। हाँ सिग्मा तो ठीक है, सम है। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ये वापस से स्टक हो गया। जस्ट अ सेकंड, लेट मी ओपन वंस अगेन दिस वन। Let's do this. Oh my god. So like see, ये स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये वेरिएंस है, ठीक है? स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर इज वेरिएंस और वेरिएंस का स्क्वायर रूट इज स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके ओके। बट एक्चुअली मैं ये भी लाइक इट इज आल्सो अ मेजरमेंट ऑफ रिस्क। इट इज आल्सो अ मेजरमेंट ऑफ रिस्क। ओके। जब दोनों रिस्क मेजर करते हैं तो फिर दोनों को क्यों यूज करना? सिर्फ एक को यूज किया जा सकता है ना। स्टैंडर्ड डिविएशन डायरेक्टली तो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने के लिए वेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ रहा है। बिना वेरिएंस के स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट नहीं कर सक रहे हैं। क्यों ऐसा? इसका रीजन है, ध्यान से समझना, टेक्निकल कॉन्सेप्ट कोई बताएगा नहीं, गारंटी दे रहा हूँ। कोई सीएमए का फैकल्टी लिख के दे रहा हूँ नहीं बताएगा, अनटिल एंड अनलेस उसको अच्छा स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज है या वो कोई एफआरएम या कोई कोर्स करवाता है। सो हियर द थिंग इज, देखो यहाँ पर कुछ समझो, ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है। ओके ये है आपका मीन, ये इसको एवरेज बोलते हैं, ठीक है? सपोज आपका, अब जैसे मेरे को ले लो, मैं मेरी एग्जांपल लेता हूँ। 6:30 आपका टाइम मैंने लगाया एग्जांपल, ठीक है? तो लाइक मैक्सिमम लाइक इसको लाइक अगर मैं 6:15 को 6:15 को शुरू कर सकता हूँ, 6:30 को कर सकता हूँ, 6:45 को कर सकता हूँ, 7 को कर सकता हूँ, ओके? और 6 o'clock भी कर सकता हूँ। जनरली मैं ऐसा तो नहीं करूँगा, कभी जल्दी तो नहीं करूँगा और लेट हो सकता है, ठीक है ना? तो इन 365 डेज जो भी एक 365 डेज का समझो, या आप ऐसा भी एग्जांपल ले सकते हो आपके ऑफिस जाने का टाइम। सपोज आपको कल के दिन जॉब लग जाता है, ठीक है? चलो वो एग्जांपल ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें यू विल फाइंड फॉल्ट्स विथ मी ओनली, सर आप टाइम पे नहीं आते। चलो आई विल जस्ट शो यू कि क्या हो सकता है फ्यूचर में। सो सपोज आपका 8 o'clock टाइम असाइंड है ऑफिस जाने का, ठीक है? सो 8:15, 8:30 एंड 7:45, 7:30, सो ये डिविएशन है, ठीक है ना? ये आपका एग्जैक्टली एवरेज है। सो एवरीवन वुड एक्सपेक्ट यू in 365 days that maximum number of days you should come at 8,
मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज आपको 8 बजे आना है, लेकिन एट टाइम्स आप 8:15 को भी आ जाते हो, एट टाइम्स 7:45 को भी आ जाते हो, तो ये डिविएशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिविएशन। ये है डिविएशन फ्रॉम द टाइम। ये डिविएशन ही हम स्टैंडर्ड डिविएशन बोल के इसको कहेंगे। ओके, मतलब अब इसको रिस्क की तरह कैसे डिफाइन करेंगे? अगर ज़्यादा लेट आते हैं तो ज़्यादा रिस्क है, कम अगर आप जल्दी आ जाते हो या टाइम पे आ जाते हो तो कम रिस्क है। हाँ। अच्छा ठीक है, अगर वैसा ही देखना है तो ऐसा भी देख सकते हो आप एवरेज प्रॉफिट 10% एस्टिमेट कर रहे हो, ठीक है, किसी इन्वेस्टमेंट रिटर्न से 12%, 14%, 8%, 6%। तो मतलब जितना जितना आगे जाओगे उतना उतना रिस्क बढ़ रहा है तो रिटर्न भी बढ़ेगा। हाँ। और आपका स्टैंडर्ड डिविएशन 2% से चल रहा है। यहाँ पर कितने से चल रहा है? 2%। हाँ, तो अब हमारा जो ये तो स्टैंडर्ड डिविएशन आपको समझ में आ गया। अब ये कॉन्सेप्ट है कि स्टैंडर्ड डिविएशन हम डायरेक्टली फाइंड क्यों नहीं कर सकते, उसके लिए हमको वेरिएंस क्यों फाइंड करना है। आप यहाँ पर कैलकुलेशन में देखो, अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करने जाऊं तो इन सबको अगर मैं ऐड करूं, देखो आप 4 जस्ट अ सेकेंड, अच्छा यहाँ पर म्यू बोल के यूज कर रहा है। म्यू इज फॉर पॉपुलेशन, ओके। एक्सपेक्टेड। हाँ, म्यू इज फॉर पॉपुलेशन एंड एम एक्स बार भी होता है। मीन को हम एक्स बार भी बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ सर, हाँ। एक्स बार इज फॉर सैंपल, म्यू इज फॉर पॉपुलेशन मीन। तो अभी इसमें ये क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड, ये हमारा एवरेज लिया इन्होंने ना, ठीक है। ये वो सर एक्सपेक्टेड जो अपन निकाले थे ना, हाँ हाँ हाँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू। वो तो मुझे पता है, वही मीन ले रहे हैं लोग, ठीक है। हाँ। अब देखो क्या होता है, सपोज मेरे सामने एक डेटा है, ठीक है। सपोज डेटा है मेरे पास 10, 20, 30, 40, 50। सपोज मेरा मीन 30 है, तो x माइनस एक्स बार करना पड़ेगा। -20, -10, 0, 10, 20, करेक्ट है। हाँ। अब मैं इसका स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना चाहूँगा, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला जो भी होगा, अगर मैं करना भी चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि इनका जो सम आएगा वो 0 आएगा हमेशा। आएगा ना 0। हाँ सर। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन तो आप फाइंड नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एनी टाइम द सम ऑफ द डिविएशन इज 0। तो इसीलिए उस चीज को ठीक करने के लिए दे हैव कम आउट विद स्क्वेयरिंग दिस। स्क्वायर करने से अब क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा एंड अब आपको वैल्यू मिल जाएगी 800 लाइक 1000। अब आप क्या कर रहे हो, आप वेरिएंस फाइंड कर रहे हो, क्योंकि वेरिएंस का फॉर्मूला है x माइनस एक्स बार सिग्मा x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर बाई n। तो 1000 डिवाइड बाई 5 करोगे आप, तब आपको जाके इसका वेरिएंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वेरिएंस आ जाएगा। और उस वेरिएंस को, जैसे मैं इसको साई स्क्वायर बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ ना। हाँ। साई मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर। स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर इज वेरिएंस, ठीक है। तो इसीलिए हम स्टैंडर्ड डिविएशन को डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, इसीलिए हम उसको वेरिएंस फाइंड करके ही स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करेंगे, ठीक है। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर फिर स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या यूज है जब वेरिएंस मेरे पास है तो? देखो एक बार याद रखो, कुछ कुछ चीजें बारीकी से समझना है। जैसे अगर मैं एक डेटा के बारे में बात कर रहा हूँ, सपोज मेरे को एक पर्टिकुलर जीन्स पैंट बनाने के लिए एवरेज में 10 मीटर का कपड़ा लगता है, ठीक है। ऑन एन एवरेज डिविएशन जो है 12 मीटर, 14 मीटर्स एंड 8 मीटर्स, यानी 2 मीटर का स्टैंडर्ड डिविएशन। यानी हम ज़्यादा कम लेके आते रहते हैं, या ज़्यादा कम भी लग सकता है, ठीक है ना। खरीद के लाते हैं, एवरेज में इतना ही कपड़ा चाहिए। ओके। एंड 6 मीटर्स। अब क्या होगा, अगर मैं इसका वेरिएंस फाइंड करूंगा तो वो मीटर स्क्वायर में आएगा आंसर मुझे। लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट क्या है? मेरा रिक्वायरमेंट है कि मीटर के टर्म्स में फाइंड करूं। तो मीटर के टर्म्स में करना, अगर 10 मीटर स्क्वायर आ रहा है मेरे को, तो ये मेरा पर्पस सॉल्व नहीं करेगा, ये मेरे को 10 मीटर स्क्वायर मीटर के बारे में बता रहा है।
मुझे चाहिए कि मेरा मेरा जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड डिविएशन है फॉर एग्जांपल वो कितने मीटर में है। तो जब तक मैं हाँ। इसको अंडर रूट नहीं करूंगा तो मीटर स्क्वायर तो जब रूट के बाहर आएगा तो मीटर हो जाएगा। हम्म। और 10 का रूट क्या आएगा आपको 3 स्क्वायर 3 पॉइंट समथिंग, हाँ। तब जाके मेरा आंसर मिलेगा मुझे। हाँ। हाँ तो सपोज ये 4 मीटर स्क्वायर है, तो 4 मीटर स्क्वायर को मैं रूट कर दूं तो 2 मीटर मिल जाएगा मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन। हाँ। तो इसीलिए मुझे करना पड़ता है वेरिएंस फाइंड करके स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। और स्टैंडर्ड ओके। डिविएशन मेरे को यहाँ मीटर के हिसाब से बताएगा और वेरिएंस मुझे स्क्वायर मीटर के हिसाब से बताएगा, तो दोनों में ये डिफरेंस आ जाता है। ठीक। ये टेक्निकल तरीके से समझना है कॉन्सेप्ट को। लोग क्या है बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सर दिस इज अ मेजर ऑफ रिस्क, दिस इज अ मेजर ऑफ रिस्क। भाई मैंने कब मना करा, दोनों मेजर ऑफ रिस्क ही है, लेकिन तुम इसको भी इसको क्या आप इसके बारे में क्या जानते हो, उसके बारे में क्या जानते हो। ये मेरा आंसर स्क्वायर मीटर में देगा, ये मेरा आंसर मीटर में देगा, इसलिए मुझे फाइंड करना जरूरी है इवन दो बोथ आर मेजर ऑफ रिस्क। समझ में आया? हम्म। हाँ सर। और प्रिसाइसली जानना है तो दैट्स इट, डन डन विद द कॉन्सेप्ट। अब ये तो आपको सामने मैंने सब कुछ वहाँ कंप्यूटेशन बता दिया, ये कर ही सकते हैं आप। हाँ सर। दिस इज योर नंबर ऑफ सेल्स, आप इसको आपके मीन से सब्ट्रैक्ट करिए, डिविएशन निकालिए, स्क्वायर करिए एंड प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करिए, आपको ये आ जाएगा। ये क्योंकि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू के बारे में देख रहे हैं, ठीक है ना। हाँ सर। एक्सपेक्टेड डिविएशन क्या होगा वो चेक कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड डिविएशन के लिए प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड यू गेट दिस, योर स्टैंडर्ड डिविएशन इज 2.5 एंड आई हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड यू द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस, ठीक है। हाँ। तो चलिए यहाँ तक सब कुछ फिनिश, आर फोरकास्टिंग इज डन। अब हमको क्या बाकी है वो देखना है, क्योंकि अब हमको जो भी हमारा सेशन होगा नेक्स्ट सेशन, उस सेशन में हमें किसी भी हाल में हमारा ये बजटिंग कॉन्सेप्ट वाइंड अप करना है, क्योंकि मंडे से आई वांट टू स्टार्ट वेरिएंसेस। हाँ सर। आई थिंक वी आर डन विद ऑल दिस ना। हाँ आप सर, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए। बस। प्रॉब्लम्स कर रहे हैं ना घर पे? हाँ सर, प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो अब गया। पेज 275 है सर। 275? हाँ सर। वो पेज निकालना। हाँ सर। अच्छा ओके, टॉप लेवल प्लानिंग एंड एनालिसिस। ओके, इसमें क्या है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, इसको कोई इशू नहीं, ठीक है। So we are doing this top level planning and analysis. Who does the top level planning and analysis? The top level managers. टॉप Understood? मैनेजमेंट। Yeah. And what we are going to say in this pro forma financial statements. Sales forecast का मतलब क्या है कि फ्यूचर में क्या सेल्स होगा हमारा, है ना। हाँ सर। फोरकास्टिंग फ्यूचर फाइनेंस, डेफिनेटली अगर हमें सेल्स करना है तो हमारे लिए हमको उसके लिए परचेजेस भी करने पड़ेंगे, हमें बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा, ये सब के लिए हमें पैसा चाहिए। या तो हम इक्विटी के फॉर्म में रेस कर सकते हैं या तो डेट के फॉर्म में रेस कर सकते हैं। तो ये सब भी हमें पहले तो फोरकास्ट बनाना पड़ेगा कि कितना पैसा चाहिए, उसके बाद फिर कितना पैसा अरेंज करना है उसके बारे में देखना पड़ेगा। एम आई राइट? हाँ सर। कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो क्या है? अमाउंट ऑफ एसेट्स रिक्वायर्ड पर मॉनिटरी यूनिट ऑफ सेल्स, यानी अपने को सेल्स करने के लिए कितना एसेट्स चाहिए, यानी दुकान गोडाउन ये सब मिला के होता है वो, ठीक है ना। ठीक। तो कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो बढ़ेगा, मतलब बढ़ना कम होना, इसके बारे में हम देखते हैं। सो कंपनीज कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो वी अंडरस्टूड, सो इज नथिंग बट द कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो इज एसेट्स दैट इंक्रीज व्हेन सेल्स इंक्रीज डिवाइड बाय सेल्स रेवेन्यू, यानी एसेट्स आपके बढ़ाओगे कब, जब आपके सेल्स बढ़ेंगे। एम आई राइट? हाँ सर। जितने सेल्स बढ़ेंगे आपके उतना आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ेगा। हम्म। सो जितना ज्यादा कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो होगा, मोर एसेट्स इट विल रिक्वायर फॉर गिवन इंक्रीज इन सेल्स एंड दस इट विल हैव अ ग्रेटर नीड फॉर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, यानी जितना ज्यादा रेशियो
उतना नीड मालूम चलता है कि हमको चाहिए एसेट्स, उतना सेल्स बढ़ाने के लिए, और उतना हमें फिर फंडिंग की भी ज़रूरत होगी। हाँ So capital intensity ratio is not total assets divided by sales revenue, because it may be that not all assets increase with increase in sales. यानी जो जो assets sales के साथ increase हो सकते हैं वही assets हमको लेना है। ओके Assets that increase with increase in sales are specific to each business. हर business के लिए अलग होते हैं वो। For forecasting purposes, assets that do not increase with sales increases would be carried over to forecast year with no increase, whereas जो increase होते हैं उसी को increase करना है, जो increase नहीं होते हैं उसको increase नहीं करना है, आपको उसको carry forward कर देना है। ओके कंपनी स्पॉन्टेनियस लायबिलिटी टू सेल्स रेशियो, यानी आपकी लायबिलिटी भी बढ़ेगी आपके सेल्स के साथ, आपको सप्लाई सेल्स बढ़ाने के लिए सप्लायर्स भी आपको सप्लाई करेंगे, ज़्यादा सेल्स के लिए ज़्यादा सप्लाई लेना पड़ेगा, ज़्यादा आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी, आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्रिएट होगा। तो जितना ज़्यादा रेशियो रहेगा उतना फाइनेंस चाहिए, जितना कम रहेगा उतना कम फाइनेंस चाहिए। हाँ सर जितना सेल्स हाई होगा उतना प्रॉफिट मार्जिन हाई होगा। So higher a company's net profit margin is, the more increased net income will be available to fund increase in assets, and less need the company will have to external financing. जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतना रिटेन करोगे, उतना यूज कर सकते हो रीइन्वेस्टमेंट के लिए। समझ में आता है? जितना प्रॉफिट हाई होगा उतना रिटेन भी कर लोगे। फाइन। हाँ सर हाँ चलिए हम एक फोरकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, एंड यहाँ से आप एक बार रीड करिए, मैं अभी 2 मिनट्स में आता हूँ। हाँ Yeah. So for steps in forecasting using the forecasted financial statement method, analyze historical. पहले आपको कुछ ratios देखने पड़ेंगे। रेशियोज कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा।
like I'll be explaining in this. So analyze historical ratios that will be used for projections. The ratios to be used will relate the various item to sales. मतलब sales से related ही ratios लेना है हमको, ठीक है? मतलब वो हाँ सर। एसेट्स जो सेल्स से रिलेटेड होते हैं जिनको हम यूज करते हैं अपने सेल्स को जनरेट करने के लिए, वही लेना है हमको. So Okay. analyze historical ratios that will be used for projections, and historical ratios are the old ratios. And the ratios to be used will relate various items to sales by dividing each one by sales. Looking at the actual ratios for at least the past 5 years, the historical average over the same period and the industry average मतलब एक हम एक फर्म है लेकिन एक इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं और हमारे जैसे बहुत सारे फर्म्स होते हैं. डेवलप फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ऑल फर्म्स इन इंडस्ट्री फॉर द फॉलोइंग रेशियोज. तो अब देखते हैं क्या होता है. कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स, यानी जो भी आपके खर्चे लगते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय सेल्स, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल्स, ठीक है? एंड डिप्रिसिएशन डिवाइड बाय नेट प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी आप यूज करते हो प्रोडक्शन करने के लिए, वो सेल्स के लिए होता है, वो है ना? हाँ. डिप्रिसिएशन को इनसे डिवाइड करना है प्रॉपर्टी वगैरह से, क्योंकि वो उसका एक्सपेंडिचर है. कैश डिवाइड बाय सेल्स, कैश चाहिए हमको सेल्स करने के लिए, कुछ ना कुछ खरीदने के लिए कैश चाहिए. अकाउंट रिसीवेबल सेल्स से रिलेटेड, इन्वेंट्री सेल्स से रिलेटेड, नेट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट ये भी रिलेटेड है. अकाउंट्स पेबल, सप्लायर को पैसा देना है, उससे हम लोगों ने सामान खरीदा है. एंड आउटस्टैंडिंग डिवाइड बाय सेल्स, ठीक है ना? अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या है. मतलब जो सेल्स से रिलेटेड है वही लेना है हमको. ओके. नाउ बिलो आर द हिस्टोरिकल रेशियोज फॉर एबीसी इंडस्ट्रीज. ओनली 2 years ऑफ हिस्ट्री आर यूज्ड, ठीक है? ऑल्दो इन प्रैक्टिस 5 years शुड बी यूज्ड. All of these ratios relate the item to be forecasted to sales. मतलब ये वही आइटम्स है जिनसे आप सेल्स का फोरकास्ट कर सकते हो by dividing the historical level of item by historical sales, ठीक है? These ratios are used specifically for forecasting balance sheet and income statement items based on forecasted sales. मतलब ये ratios को आप यूज कर रहे हो for forecasting balance sheet. मतलब आप क्या कर रहे हो, मतलब आप अपना एक बैलेंस शीट का फोरकास्ट बना रहे हो कि कैसे फ्यूचर में उसके बैलेंसेस होंगे, उसमें जो भी आइटम्स हम लिखते हैं, एंड दैट इज रिलेटेड टू सेल्स, ओके? एंड इनकम स्टेटमेंट का भी फोरकास्ट कर रहे हैं आप बेस्ड ऑन सेल्स. मतलब सेल्स को बेस बना के सबका फोरकास्ट कर रहे हैं, एंड देयरफॉर दे आर डिफरेंट फ्रॉम रेशियोज दैट आर यूज्ड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. तो आप वो रेशियोज को, ये रेशियोज को बिल्कुल भी मत समझना कि वो कोरिलेट करते हैं. दीज आर डिफरेंट, दोज आर डिफरेंट, ओके? सो नाउ लेट अस सी. तो जो भी मैंने अभी आपको ऊपर में जस्ट जो लिस्ट बताया वो सारा का सारा उसका रेशियो दिया हुआ है. 2010, 2011 हिस्टोरिकल एवरेज कैसे मिलेगा हमको? दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो, करके देखो एक बार तारा. हाँ 74.3 प्लस 75. आ रहा है क्या? एक बार चेक करके बताओ. हाँ सर आ रहे हैं, हिस्टोरिक एवरेज आ रहे हैं. हाँ, इंडस्ट्री एवरेज का हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो वैसे दिया हुआ है हमको. हाँ. तो फोरकास्ट द इनकम स्टेटमेंट. तो अब इनकम स्टेटमेंट के लिए हमको क्या क्या चाहिए? द इनकम स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शीट नीड टू बी इंटीग्रेटेड ऑफ कोर्स. द इनकम स्टेटमेंट इज फोरकास्ट फर्स्ट, उसके बाद फिर बैलेंस शीट. सिंस नेट इनकम नेट ऑफ डिविडेंड्स फ्लोज टू रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन द बैलेंस शीट. Forecasting the balance sheet will follow the income statement forecast. Now let us see here forecast sales, यानी forecast sales. ABC Industries sales during the previous year were this. Actually ये सब डेटा दे रहा है अभी कैसे आया. प्रीवियस ईयर में उसका सेल्स कितना था? इतना था. एंड कंपनी फोरकास्ट 10% इंक्रीज इन सेल्स ड्यूरिंग द करंट ईयर. यानी अब वो 10% मतलब वो बढ़ गया 1,65,000 हो गया. एम आई राइट? पहले उसका सेल्स कितना था? 1,50,000. और उसने क्या फोरकास्ट करा कि इस साल यानी करंट ईयर में उसका सेल्स 10% बढ़ जाएगा. तो वो हो गया. फोरकास्ट अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. सो forecast cost of goods sold and selling general and administrative expense by applying to forecasted sales amount. मतलब अब जो भी हम करेंगे forecasted sales amount के हिसाब से करके अपना रेशियो निकालेंगे. Got my point? हाँ. अब देखो
like the most recent actual ratio of cost of goods sold, and this ABC Industries most recent actual ratios are its ratios for 2000 this year, okay, current year. Previous year क्या था उसका 2010 था शायद, okay, that was the previous year and this is the current year. अब देखते हैं कैसे रेशियोस आ रहे हैं उसको, 75.5 आया आपको यहाँ पर, है ना. लेट्स सी. हाँ. नेट सेल्स ऑल ऑन क्रेडिट 1,50,000 था पहले, था कि नहीं था? पहले इतना ही था ना. हाँ. अब कितना हो जाएगा, अब कितना मतलब अब कितना हो जाएगा, 165 हो जाएगा नेक्स्ट टाइम. अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन इतना है. ग्रॉस प्रॉफिट सेलिंग लाइक ये इंक्लूडिंग मतलब वो मशीनरी का डिप्रिसिएशन जो होता है वो इसमें इंक्लूड कर रहे हैं. डिप्रिसिएशन यहाँ निकाल एंड ये निकालने के बाद डिप्रिसिएशन भी ले लिए हैं, EBIT है, ठीक है. So now let's see the statement here. Forecast cost of goods sold and this expense by up. ये मतलब साउंड आ रहा है बैकग्राउंड में. ओके. सो प्रेयर चल रहा है क्या? Okay. सर वो मस्जिद है सर, घर के पास मस्जिद है तो वो आवाज आता है. मेरे ख्याल से नमाज चल रहा है. होता है तो मतलब अपना पार्ट ऑफ लाइफ है. सो लाइक फोरकास्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड लाइक selling and this is, what is this? Selling general and administrative by applying to the forecasted sales amount. Itna the most recent actual ratios of cost of goods sold and this expense to sales. तो ये अमाउंट से हमको recent ratios मिलेगा. ABC Industries most recent actual ratios are its ratios to this. ABC's actual historical income statement amounts for this follow, यानी अगले साल के लिए, and the cost of goods sold and these lines below include notes about the historical ratios. ठीक है, मतलब ये फोरकास्ट ही बता रहे हैं. तो ये तो हमारा ठीक है, समझ में आ गया. एंड दिस फोरकास्ट बेस्ड ऑन एज एक्सप्लेन्ड इन वन अबाउट 2001 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू सेल्स रेशियो दिया हुआ है एंड ऑल दिस इज गिवन, ऊपर ही दिया हुआ है. कैसे आया आपको? आप एक काम करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय नेट सेल्स करो. 1,13,210 डिवाइड बाय 1,50,000. 0.75 आ रहा है. हाँ, 0.75 into 100 करो. 75.4. हाँ वही 75.4. हाँ वही आएगा. एंड ये करके देखिए आप 26,880 बाई 1,50,000. 0.17. हाँ वही आएगा. ठीक है बस. ये अननेसेसरी का फोरकास्ट है, ये आप लोग देख सकते हैं, मुझे बताने का जरूरत नहीं है. इसमें कुछ है ही नहीं, आप लोग को सिर्फ पढ़ के अपना परसेंटेज निकालना है. मतलब फोरकास्ट मतलब क्या है, आप कुछ चेंजेस के साथ अपने वैल्यूज को देख रहे हो बस, और क्या रहेगा. मतलब पहले आपका बोरोइंग्स कुछ और था, अब उसका रेशियो अलग रहेगा. अब आपके बोरोइंग्स कुछ और है, उसका रेशियो अलग रहेगा, उसी के बारे में रहेगा ना, और क्या रहेगा. तो आप ये टास्क को कर लो, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए, मेरे को आपको ही रीड करना है वो. हाँ, हम क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन कर सकते हैं. इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं क्या इसमें कुछ बता नहीं. पहले इसमें कुछ है क्या, कुछ भी मुझे नहीं दिखता कुछ ऐसा बताने का है मुझे. फोरकास्ट नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस और नेट इंटरेस्ट इनकम, इसके बारे में कोई डेटा ही नहीं है. ये कहाँ से आएगा? अगर इन्वेस्टमेंट करे तो इंटरेस्ट आएगा, और लोन लिए तो इंटरेस्ट पे करना चाहिए. ठीक है, यहाँ से देखते हैं. चलिए, फॉर फॉलोइंग एग्जांपल जस्ट 2 रेट्स विल बी यूज्ड.
लाइक 0.5 से परसेंट से इंक्रीज हो रहा बोल के बता रहा। वो चेंजेस देख लेके हमको क्या करना है, जैसे द फोरकास्टेड इंटरेस्ट एक्सपेंस इज 5.5%, पहले 5% था, उसका 0.5 इंक्रीज हो गया ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ऑफ 10,000 प्लस 7.5% ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो ये हमारा क्या है, द फिक्स्ड रेट लोन टर्म, द फिक्स्ड रेट लॉन्ग टर्म लोन बैलेंस, इसका हमको फिर 5.50 मतलब 5% इंक्रीज करके देखने का है ना। और नेक्स्ट टाइम पे 75% इंक्रीज करके देखने का है इंटरेस्ट अमाउंट। तो इतना बढ़ जा रहा 1706। क्या हो रहा है, 10,000 जो भी आपका, मतलब क्या बोल रहा है कि फिक्स्ड रेट लॉन्ग टर्म लोन बैलेंस एट द एंड ऑफ दिस एंड बिगिनिंग ऑफ दिस इज इतना, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड एवरेज इंटरेस्ट रेट ऑन फिक्स्ड रेट लॉन्ग टर्म बोरोइंग इज दिस, इंटरेस्ट रेट इन दिस फोरकास्ट हैव बीन इंक्रीज बाय दिस मच। तो आपको क्या करना है, बस वो 5% बढ़ा के आपको चेक करना है। So therefore the forecasted interest expense is 5.5% on short-term borrowings of 10,000 plus 7.5% on long-term borrowings of this. तो 10,000 के ऊपर 5.5% कर दो और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के ऊपर इतना परसेंट ऐड कर दो, इंटरेस्ट आ जाएगा आपको, ठीक है ना। दो लोन है वहां पर, एक शॉर्ट टर्म है एक लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म पे 7.5 और शॉर्ट टर्म पे 0.5% बढ़ रहा है। तो सब कैलकुलेट कर लिया हमने, यहाँ पर लिख दिया नेट सेल्स है। अब आपका क्या हुआ, ये पुराने फिगर्स आपके पूरे आ गए। अब इसका उसने क्या किया है, फोरकास्ट किया है, मतलब चेंजेस किया है। तो देखो यहाँ पर अपना 10% बढ़ गया, तो इतना हो गया, बढ़ गया ना आपका नेट सेल्स। हाँ सर, हाँ सर। एंड आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी इतने परसेंट से बढ़ गया, ऊपर दिया हुआ है डेटा। एंड आपका सेलिंग एक्सपेंसेस का भी ये परसेंटेज है। और लाइक एक सेकेंड, ये आपका एक्चुअल था, ये फोरकास्टेड है, मतलब ये पिछले साल का, ये इस साल का एक्चुअल है, ठीक है। वो तो हम मल्टीप्लाई करके लेके आ गए, देखो ये रहेगा आपका, है ना। हाँ। तो जो फिगर्स है उसके मल्टीप्लाई करके ये फिगर्स आ गए। एंड ये फुटनोट 1 फुटनोट 2 चेक करना है, क्या है इसमें। 409 से इतना हुआ, अब ये पूरा नेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इक्वल्स दिस मच परसेंट ऑफ सेल्स इन 2001 एंड टोटल डिप्रिसिएशन दिस मच ऑफ नेट। अच्छा, मतलब आपका जो बोल रहा है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 32.3% था नेट सेल्स का, यानी आपका सेल्स ये है ना। बैलेंस शीट तो हमारे को दिया हुआ ही नहीं है, तो हम कहाँ से निकालेंगे ये सब। हाँ ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इतना दिया हुआ है ना आपको परसेंटेज। हाँ सर। ये आप सेल्स के ऊपर निकाल लो वैल्यू, तो आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू आ जाती, ठीक है। और डिप्रिसिएशन 9.1% ऑफ नेट प्लांट एंड, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू आने के बाद डिप्रिसिएशन का आप 9.1% इस पे अप्लाई कर दो, यू विल गेट द डिप्रिसिएशन वैल्यू। मतलब वो परसेंटेजेस अप्लाई करके आपको वैल्यूज निकालना है। इस साल के लिए कर रहे हैं हम लोग, ये 2001 के भी वैल्यूज हैं ऊपर, 2002 के भी वैल्यूज हैं। हाँ। देखो आप, ये देखो 2001 के वैल्यूज हैं और 2002 के अभी कुछ वैल्यूज हम देखें ना। हाँ सर। ये आगे के लिए दिया, देखो ये ठीक है, फोरकास्ट। तो वो फोरकास्ट के हिसाब से ये वैल्यूज तो हमको आ गया। हाँ। अच्छा, आगे का भी ये एक्चुअल है और फोरकास्ट भी दे दिया। अब ये मतलब अगर अपने को ये चाहिए, यानी 446 क्या है हमारा डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे निकलेगा ना। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए आपको 32.3% सेल्स पे अप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो अप्लाई करके उसके ऊपर 9.1% आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे डालना पड़ेगा। तो 4,409 आ रहा है आपको। यहाँ तक ठीक है सर एक बार वापस बताना। भाई, आपका जो सेल्स है वो 32.3%, आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 32.3% है सेल्स का, वो कैलकुलेट कर लो, आपको वैल्यू आ जाती है। उसके ऊपर 9.1% अप्लाई कर दो,
तो ये आ Okay. जाता आपको डिप्रिसिएशन. A portion of depreciation on manufacturing facilities included in cost of goods sold expense and another portion is capitalized in inventory. मतलब कुछ लोगों ने क्या किया है, इसमें लिखा है और बाकी का उन लोगों ने इन्वेंट्री को ऐड कर दिया है. ठीक है. Under absorption costing, fixed manufacturing cost, depreciation or these are inventoried as part of cost of each product and become a part of COGS when units they are attached to are sold. मतलब ये क्या होता है, absorption costing में हम जनरली क्या करते हैं, जो भी फिक्स्ड एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है जैसे डिप्रिसिएशन या कुछ भी दूसरे जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं, हम उसको क्या करते हैं, कैपिटलाइज कर देते हैं इन्वेंट्री को. ठीक है. मतलब हम उसको क्या करते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट को ऐड कर देते हैं. क्या करते हैं, ऐड करते हैं. मतलब प्रोडक्ट के कॉस्ट में ही इंक्लूड कर देते हैं. वो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट ही होता है. तो वो फिर क्या होता है, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बन जाता है. And cost of goods sold includes this much in depreciation expense and this much in and 840 in depreciation is capitalized in unsold inventory. अब देखना पड़ेगा इसका डेटा. 3160. Cost of goods sold. एक सेकेंड. In 2001, cost of goods sold includes 3,160 in depreciation expense and 840 in अच्छा depreciation का 4,409 दिया ना आपको. हाँ. अब ये 4,409 में वो डिविजन्स कर रहा है क्या, वो देख रहा हूँ मैं. 2001 में वो बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड्स 3,160 in depreciation expense and 840 in depreciation is capitalized and in the unsold inventory and cost of goods sold and SG&A depreciation is only portion of total depreciation that is segregated income statement to this one. अच्छा एक सेकंड में कैलकुलेट करता हूँ, एक सेकंड. So what is he saying? 3,160 plus. अच्छा मतलब ये डेटा तो कुछ नहीं है. आई थिंक ये खुद ही बता रहे हैं, खुद ही ऐसा दे रहे हैं शायद. मतलब इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, तो हम इसको कंक्लूड नहीं कर सकते हैं. वो खुद ही ऐसा डेटा बता रहे हैं कि इसमें उन्होंने 3 पार्ट्स में बांट दिया है. ओके फाइन. अच्छा 9.7%. वो तो हम 9.1. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. हाँ वो वैसे ही करना पड़ेगा. दे हैव नॉट गिवन एनी डिटेल्स रिगार्डिंग दिस. मतलब SG&A कॉस्ट में डिप्रिसिएशन नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में डिप्रिसिएशन है. कहीं भी कोई डेटा नहीं है उसके बारे में. सो वो क्या बोल रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड्स, यानी ये जो ये जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, इसमें ऐसा इंक्लूड किया हुआ है 3,160 उसमें गया डिप्रिसिएशन का. 840 कैपिटलाइज किया गया, इन्वेंट्री को ऐड किया गया और वो मिला के 4,000 होता है. और बाकी का 409 जो वहाँ एक्स्ट्रा मतलब जो हमको दिख रहा है ना 4,409, बाकी का 409 वो SG&A में इंक्लूड कर दिए. ठीक है. ओके. अब ये 3 डिविजन्स उन लोगों ने किस बेसिस पे किया है, इसका कोई डेटा हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है. तो शायद वो सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं और बता रहे हैं शायद, क्योंकि यहाँ इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन दिया है. अब वो इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन ऑन व्हाट बेसिस 3,160 दे हैव टेकन देयर, और क्योंकि उसका मैं डिवीजन कर दूँ कैसे करूँ, कोई डेटा ही नहीं है मेरे पास. इतना इसमें इतना एलोकेट करो, इतना एलोकेट करो, दे हैव नथिंग गिवन, दे हैव नॉट गिवन एनीथिंग लाइक दैट. एंड द डिवीजन आल्सो कैन नॉट बी मेड ऑन सम सिंगल परसेंटेज. अब ये देखो एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन टू सेल्स, हम डायरेक्टली कोई अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, ऐसे कैसे कर देंगे.
ओके फाइन, आप ऐसे अंडरस्टैंड करो क्योंकि दे हैव नॉट गिवन एनी डेटा। ओके एंड अब उसके बाद आपका प्रीसीडिंग इंफॉर्मेशन इन दिस फुटनोट अबाउट दिस डिप्रिसिएशन एंड ब्रेकडाउन कम्स फ्रॉम नोट्स ऑफ फाइनेंशियल्स एंड नथिंग एंड नॉट समथिंग दैट, हाँ ठीक है, अब ठीक है ना भैया, वॉट एवर वी एस्टिमेटेड सेम थिंग दे आर सेइंग। The preceding information in this footnote about this depreciation and its breakdown comes from the notes to financial। अच्छा ठीक है, ये जो पर्टिकुलर है ये प्रॉब्लम एक एक्सट्रैक्ट है किसी पर्टिकुलर कंपनी के स्टेटमेंट्स का, तो जो फुटनोट्स में उन लोगों ने एक्सप्लेन किया है वो चीज़ उन लोगों ने यहाँ प्रिंट कर दिया, ठीक है। ठीक। एंड द फोरकास्ट फॉर नेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज फोरकास्टेड दिस मच। अब वो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। मतलब वही है, मतलब आपको पता है 32.3% इसका इतना आ रहा है, फिर उसका 9.1% लगाओ इतना आएगा, फिर उसका भी ब्रेकअप वो लोग दे रहे हैं। ओके मतलब वो भी उसका क्या बोल रहे हैं 446 इसमें जाएगा, ठीक है। ओके चलिए वो तो क्लियर है। और ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी नेट इंटरेस्ट पहले तो फाइंड कर ही लिया था। 1706 कर लिया ना, ये पहले का है या अभी का है? हाँ सर। ऊपर ही हो गया, चलो। सो डन विद दिस क्वेश्चन एंड टुमारो विल डू अ बैलेंस शीट। ओके हाँ क्या है मतलब इसका, अब हमको सिर्फ इनकम स्टेटमेंट कर दिया ना, बैलेंस शीट कर लेंगे कल, हो जाएगा फिनिश। ओके बाकी का नेक्स्ट वाला आप होमवर्क कर सकते हो। आई थिंक टुमारो इट विल बी डन, एंड छोटा मोटा कुछ बचेगा तो वो चैप्टर में हम देख लेंगे। ओके, ओके ओके सर। ओके टुमारो इज द क्लोजर फॉर बजटिंग, द फाइनल ओके क्लास। ओके ओके तारा, थैंक यू, बाय सर। बाय। बाय बाय बाय।